Hi everyone, myself Dr. Jay Shukla. I'm a biology faculty, and first of all, best of luck to all NEET aspirants for your preparation for this upcoming NEET 2021. Right? I hope our mock test will help you to prepare yourself in better way so that you can appear in these upcoming NEET examinations with more confidence. Right? Now, students, I have set your entire paper of biology, right? And I received many calls about many queries in regards of this particular paper. Now we gonna go through the entire paper, right? We will solve the entire paper so that you will come to realize that there are many aspects of NCERT which you need to consider before you finally appear in your NEET examinations. I have handpicked many lines from your NCERT only, and students, they were getting confused while they were attempting such MCQs, right? So as we solve the entire paper, as I told you, you will come to realize that in these last final 10 to 12 days, how to further enhance your preparation as far as biology is concerned. So let's start with our solution. The very first question here is, what is the location and secretion of oxyntic cell? I think it's pretty much easy, right? As you know, oxyntic cells are located in stomach, in gastric epithelium, and it secretes what? They secrete HCl. Second question is, which fluid is present in the cavity of ball and socket joint? Again, I can say this question is also relatively easy. It is given in chapter of locomotion and movement. There is a synovial fluid, a lubricative fluid, which is present in the synovial cavity, which allow the free movement of joints. This MCQ, it is slightly tricky, right? Here they are asking, what is the meaning of lower value of Km? What is the meaning of lower value of Km? Now see, the Km value, it is actually Vmax upon 2. If you remember, it is given in the chapter of biomolecules, right? In the 11th, in the chapter of biomolecules, the very last topic of the chapter of biomolecule is enzyme. और वहां पर उन लोगों ने आपको मतलब वो ग्राफ दिया है, पता है रिएक्शन की वेलोसिटी वाला, that this is the Vmax, maximum velocity, and here it is Vmax upon 2, half the velocity of reaction. Now see, as I told you, Km means what? It is Vmax upon 2. तो आप सोचो, अगर Km की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब रेट की वेलोसिटी काफी ज्यादा है, रिएक्शन काफी जल्दी से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए Km वैल्यू कम है. अगर Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसे मान के चलो कि Vmax upon 2 वो यहां पर आ रहा है, Vmax upon 2 यहां पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है? Reaction is getting slower. So the answer of third MCQ is what? The lower value of Km means higher substrate affinity of enzyme. All those substrates, they are quickly binding with the enzyme and they are attaining their velocity at very faster rate. They are attaining faster velocity within a small period of time. The next MCQ is, all organisms are parasites. They belong to, again, it is directly given in NCERT in chapter of animal kingdom that all cyclostomata, they are parasite. The next is, in body, concentration of sodium depends upon, the answer is what? The answer is secretion of adrenal cortex, right? Adrenal cortex secrete mineralocorticoid. Mineralocorticoid is aldosterone, and aldosterone is also termed as salt retaining hormone. Aldosterone maintains the normal concentration of NaCl in our body. So the volume of sodium, the concentration of sodium in our blood is mainly maintained by which hormone? Aldosterone, which is mineralocorticoid, which is secreted from adrenal cortex. The next is again the tricky question, safe period. What is safe period? इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलत लॉजिक यूज किया है सेफ पीरियड में. Now see, when we say safe period, it means a period during which there is no chance of conceiving pregnancy. A period during which there is no chance for conception. That period is termed as what? That period is termed as safe period. तो आप लोगों को ये देखना है कि कौन से टाइम ड्यूरेशन में एग फेलोपियन ट्यूब में होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल जीरो है, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, in which particular time duration the possibility of egg
being in the fallopian tube is 0, right? So here the correct answer is, the most appropriate answer is a week before bleeding phase. A week before bleeding phase. Now see, as you know, bleeding phase lasts for from first to 5th day of menstrual cycle. ये ड्यूरेशन किसका हो गया? ब्लीडिंग डे का. Now week before bleeding day, it means you are talking about which particular days? 22nd to 28th day of menstrual cycle. So this is the duration during which there is no any possibility of egg being present in fallopian tube. So there is no any possibility for pregnancy. That's why this particular period is termed as safe period. The next question, by what time most organs are fully developed in embryo? The correct answer is what? 3 months. It is given in human reproduction chapter. The next, sound waves from fenestra ovalis enter in. Here the answer is perilymph of scala vestibuli. Remember, sound waves, right, from tympanic membrane. Sound waves from tympanic membrane pass further through ear ossicles. The last ear ossicle is stapes. So it's malleus, incus and stapes. And stapes open. Remember, last ear ossicle, stapes open into scala vestibuli through oval opening. Through which opening? Oval opening. So sound waves first enter in scala vestibuli. From scala vestibuli, those sound waves cross Reisner's membrane and those waves will enter in scala media, where organ of Cotta is present, which is the sensory organ of hearing. The next question, a band of skeletal muscle is made up of, again it's easy, it's overlapping actin and myosin, right? वो याद है ना, A band means dark band, तो dark band है उसमें overlapping thick filament भी है myosin के और thin filament भी है actin के. वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में आप लोगों को डायग्राम में दिया हुआ है. The next, the center of medulla oblongata regulates, as you know, medulla oblongata regulates all kind of involuntary activities like respiration, cardiac reflex action, gastric secretion. All these functions are being controlled by medulla oblongata. The next, which hormone regulates Sertoli cell? The answer is FSH. Follicle stimulating hormone stimulates Sertoli cells. Again, it is given in the chapter of human reproduction. Then the blue whale respire through which organ? The answer is lung. देखो यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट्स ने जल्दी में तुरंत गिल्स आंसर में डाल दिया है, right? Because वो ऐसा सोचते हैं कि whale means aquatic animal, so obviously it must be respiring through gills. But you need to understand, थोड़ा मतलब आराम से जाओ, जल्दी मतलब वो पेपर खत्म नहीं करना है. आराम से सोचो, तुम्हें लग भी रहा है ना कि ये क्वेश्चन तुम्हें 100% आता है, फिर भी राइट, गिव इट अ मोमेंट, एक बार कंफर्म करो कि तुम जल्दी में कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो ना, राइट? सो ब्लू व्हेल इज अ मैमल. Blue whale is a mammal and all mammals they perform respiration through lungs. So here the correct answer is lungs. The next question is, which two hormones are essential for life? Here the answer is parathormone. Which hormone? Parathormone and aldosterone. Remember, the removal of adrenal gland, it will cause instant death, and that's mainly because of lack of aldosterone, since aldosterone is the main hormone which maintain normal sodium level in our blood, which is responsible for reabsorption of sodium. Understood? So if there is no aldosterone, there will be a sudden loss of sodium from our body. If there is no parathormone, again calcium level in the blood will decline sharply and it will lead to instant death. So which two hormones are essential for life? Answer is parathormone and aldosterone. The next question, in vein of hepatic portal system which tissues are present? See again, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सोचना है. They are talking about vein, means a wall of blood vessel, right? If you remember in the chapter of circulatory system, they have mentioned the type of layer and the type of tissue present in the layer or in the wall of blood vessels. The layer present in the wall of blood vessels are three: tunica externa, tunica media, tunica interna. If you remember, tunica externa is made up of connective tissue,
Tunica media is made up of smooth muscles. In tunica interna is also termed as endothelium, which is made up of epithelial tissue. So here the correct answer is above all. The next question, any insect you are observing on wall of your home normally would not fall because it has statocyst. Is clearly mentioned in the arthropoda in animal kingdom that arthropoda, particularly insect, they have a statocyst acting as a balancing organ. The next, in mammal, insulin is synthesized as proinsulin, which become fully mature and functional in Golgi complex, right? And for the preparation of humulin, which of the following gene is introduced in the plasmid of E. coli? Again, it's a little tricky question. वो आप लोगों को ये पूछ रहे हैं कि तुम ह्यूम्यूलिन बना रहे हैं, the American company, Eli Lilly company, right? They have prepared artificial insulin termed as humulin. तो उसमें हमें कौन से जीन डालने हैं? So we have to introduce a gene which can code peptide chain A of insulin and peptide chain B of insulin, right? So here the correct answer is DNA sequence corresponding for chain A and chain B. C का नहीं डालना है. Because if insulin is having a peptide C, that is a proinsulin. That is inactive form of insulin. We obviously don't want inactive form of insulin, right? We need what? We need directly an active insulin, right? So we are preparing only two peptide chain A and peptide chain B. And remember, they have not isolated these genes of peptide A and peptide B from humans. तो human के genes नहीं डालने हैं. राइट सो इसलिए कई सारे मतलब स्टूडेंट्स ने इसमें ह्यूमंस का आंसर दिया है, इसमें ह्यूमंस का आंसर नहीं आएगा. इसमें आंसर कौन सा होगा? डी. डीएनए सीक्वेंस इज कोरिस्पोंडिंग फॉर चेन ए एंड चेन बी. द नेक्स्ट, व्हाट आर स्पेशल फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? ये तो थोड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि जहां पर ज्यादातर बच्चों ने गड़बड़ कर दिए. हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें आपकी गलती नहीं है. इसमें जो भी ऑप्शंस दिए, दीज ऑप्शंस आर क्लोजली रिलेटेड. बहुत ही मतलब नजदीक नजदीक के ऑप्शन है जिसमें किसी से भी गलती निकलवाई जा सकती है. तो इसमें यही हुआ है. देखो, ये आपको इसका आंसर मिलेगा एनिमल टिश्यू के चैप्टर में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जहां पर कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होता है तो तुरंत उसके फर्स्ट पैराग्राफ की दूसरी और तीसरी लाइन में ये मतलब लिखा हुआ है, राइट? इसका आंसर है कनेक्टिव टिश्यू, दे आर रिस्पांसिबल फॉर लिंकिंग ऑर्गन्स एंड सपोर्टिंग ऑर्गन्स एंड लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यूज. तो दोनों दिया गया है, टिश्यू में भी दिया गया है लिंकिंग एंड सपोर्ट, ऑर्गन्स में भी दिया गया है लिंकिंग एंड सपोर्ट. तो देखो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 लिंकिंग ऑर्गन सपोर्टिंग ऑर्गन वो करेक्ट है. लेकिन थर्ड में देखो, ऑप्शन की लैंग्वेज रीड करो, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यूज बट नॉट ऑर्गन्स. तो ये जो नॉट ऑर्गन्स दिया है ना, वही से वो आंसर गलत है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 both. The next question is blood enters in heart because muscle of atria are in which stage? Relaxed stage. Obviously, when atria are in diastole, they receive blood. Next, find the incorrect statement. देखो, यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन 2 पढ़ो. आंसर क्या है, मतलब उसमें क्या दिया गया है? लास्ट वर्ड पढ़ो, उसमें दिया गया है नॉर्दर्न ब्लोटिंग, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर द टेक्निक थ्रू व्हिच वी आइसोलेट डीएनए. It is southern blotting, right? The term northern blotting. Northern blotting is a technique which we use to isolate RNA. And there is one more blotting method which is termed as western blotting. Now western blotting is a technique to isolate protein. तो समझ में आया? southern blotting किसके लिए? DNA के लिए. और यहां पर तुम्हें क्या दिया ऑप्शन में? डीएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लोटिंग. तो ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. The next is the use of bioresource. ये इजी है, बायोपायरेसी वाला, राइट? The next, when we describe evolution as a process, जो स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी है, हर एक लाइन को मतलब पूरा वेटेज देके नहीं पढ़ा है, वो बच्चों के लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है. ये अगेन इवोल्यूशन में मतलब ये पूरा पैराग्राफ दिया है और उसमें पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन किया गया है that whether to consider evolution as a process or evolution is a result of any process, right? तो उसमें clearly mention है, लाइन दी गई हुई है that when we describe the story of this world, the evolution can be considered as a process. But when we describe the story of life on earth,
right? We consider evolution as a result of process of natural selection. तो जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका रिजल्ट इवोल्यूशन है. लेकिन जब हम स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड की स्टोरी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस ले रहे हैं, राइट? So here the correct answer is second, when we describe the story of this world. Then which one of the following statement is correct? Obviously, as you know, malignant tumor, it spreads in our entire body, and the process of spreading of malignant tumor is termed as what? Is termed as metastasis. The next question, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को आरडीएनए के जो स्टेप्स है वो स्टेप्स की सीक्वेंस पूछी गई है. तो वो आपको पता होगा कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपना डिजायरेबल जीन वाला जो डीएनए है वो डीएनए को आइडेंटिफाई करना है. एक बार आपने उस डीएनए को आइडेंटिफाई कर दिया, फिर आपको वो डीएनए को कहां पर डालना है, होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना है. एक बार आपने उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया आरडीएनए को, फिर आपको होस्ट को मेंटेन करना है. और आप होस्ट को मेंटेन करोगे तो ऑब्वियसली दोस होस्ट सेल्स विल मल्टीप्लाई एंड दे प्रोड्यूस प्रोजेनीज, and that's how that RDNA will transfer into their progenies. So here the first step will be identification of DNA with desirable gene. Second step would be introduction of identified DNA into host. Third step would be maintenance of introduced DNA in the host. And the last would be transfer of DNA to its progeny. So in question number 123, the correct answer is what? First. Then, which layer is highly vascular? A layer which is rich in blood supply. See, durameter, it is non-vascular, but the pyometer, it is highly vascular. And all epithelial tissue are non-vascular, right? If you remember or if you know, epithelial tissue, they grow above connective tissue. There is no any capillary supply to epithelial cells, right? So here the correct answer, which layer is highly vascular? The correct answer is pyometer of spinal cord. Then the next question, which animals are uricoteric? देखो पहले ऑप्शन में दिया है पाइसिस, तो यूरिकोटेलिक में से बाहर चला गया. दूसरे में भी पाइसिस है तो वो भी बाहर चला गया. लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें ह्यूमंस है, ऑब्वियसली हम यूरिकोटेलिक नहीं है तो वो भी बाहर हो गया. मंकीज भी नहीं है, काउ भी नहीं है, राइट? सो हियर द करेक्ट आंसर इज reptiles and aves, right? And those arthropoda, so it includes lizard, snake, aves and insect. So here the correct answer is 3. The next is mental cavity perform. See, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जल्दी में गलत अटेम्प्ट कर दिया है. ये एनिमल किंगडम में दिया गया है, राइट? मोलस्का में mental cavity perform two functions, excretion and respiration. Then a female has to consume Saheli pill, that you know, right? Once a week pill, a non-steroidal preparation prepared by CDRI, Central Drug Research Institute. So once in a week. So answer is every week. What is the cause of cretinism in young children? Obviously deficiency of which hormone? Deficiency of thyroxine. Then next is any damage to liver result into, obviously liver is responsible for formation of urea. So any damage to liver, it means the process of deamination will be impaired, right? And as process of deamination get disturbed, production of urea will decrease. The next is, which of the following do not synthesize by pituitary gland? Again, slightly little tricky one. आपको पता होना चाहिए कि जो posterior pituitary gland है, न्यूरोहाइपोफिसिस, वो सिर्फ ऑक्सीटोसिन और ADH को स्टोर करता है, right? Actually, oxytocin and ADH get synthesized by hypothalamus. Right? These are two hormones which do not get synthesized by pituitary gland itself. So here the correct answer is oxytocin. Then Devonian period belong to Paleozoic era. Right? It is given in those charts of chapter evolution. The next, a boy noticed that whenever he plays in the ground, his eyes and nose starts watering. It means this boy is suffering from allergy. And to fight against allergy, we need to use such type of drugs which can stop the secretion of histamine, right? Mast cells, type of basophil, secrete what? Histamine. And histamine, it is responsible for allergic manifestations. So we have to stop the secretion of histamine. So for that, we prescribe antihistaminic drugs.
Next question. For many biological activities of protein, what structure is absolutely necessary? Tertiary structure. Most enzymes represent tertiary structure of protein. So the correct answer is tertiary. Joel's fish probably evolved around 350 million year ago. वो डायरेक्टली इवोल्यूशन चैप्टर में दिया गया है. The 99% of blood cells are involved. देखो यहाँ पर आपको थोड़ी मतलब दिक्कत फील हुई होगी. ये थोड़ी मतलब गलती है पेपर में. जो लास्ट में फेगोसाइटोसिस वर्ड दिया है वो वहां पर नहीं देना चाहिए था. Actually the question is 99% blood cells are involved in which process, and hence the answer is transport of oxygen. Right? Because erythrocytes, these are cells which are present in maximum number and they almost represent 99% of blood cells, and all of them are involved in the process of transportation of oxygen. तो ये हम आपको ग्रेस दे रहे हैं क्योंकि इसमें लास्ट में जो फेगोसाइटोसिस टर्म है वो वहां पर नहीं होना चाहिए. वो टर्म की वजह से आप लोग काफी कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे वो आपको याद है पीबीआर 322, वो पीबीआर 322 पूरा प्लाज्मिड जो बायोटेक्नोलॉजी में दिया गया है उस पे पता है ना आपको. यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दी गई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहाँ पर एक सीक्वेंस दी गई है आरओपी, और यहाँ पर लेबलिंग की गई है पीवीयू2. So here is the enzyme PVU2. It's a restriction endonuclease, right? Which can cut which site? It can cut the ROP site. So here the correct answer is PVU2. The next question. अरे वो यूएस की मतलब कंपनी ने बासमती का मतलब पेटेंट करा लिया था ना, मतलब एक्चुअली वो चोरी की थी उन लोगों ने. तो from which organization they have patented basmati rice? The answer is US Patent and Trademark Office. Next is excess formation of uric acid may cause which disease? Uric acid के क्रिस्टल joints पे accumulate हो जाते हैं, and the accumulation of crystal of uric acid will lead to gout, right? So the correct answer is gout. Then which chromosomal abnormality can be diagnosed by amniocentesis? All chromosomal abnormality, right? Turner syndrome, Klinefelter syndrome, or Down syndrome. Again, it is clearly mentioned in the NCERT in chapter of reproductive health. The next is वापस इनकरेक्ट हमें ढूंढना है. उसमें दिया गया है स्मोक मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी. वो करेक्ट है. डायरेक्टली आंसर पे आते हैं. ये जो तुम्हें टाइम पीरियड दिया गया है ना एडोल्सन का, दैट टाइम पीरियड इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज सी, राइट? मींस करेक्ट आंसर इज 3. The next is, what is the role of calcium in muscle contraction? See, calcium bind with troponin, and when calcium bind with troponin, it will stimulate the process of formation of cross bridge between thin filament of actin and thick filament of myosin. So the correct answer is first, formation of cross bridge between actin and myosin filament. The next is, select the type of enzyme for given reaction. Again, here the correct answer is transferase. ये रिएक्शन आप लोगों को दिया गया बायोमोलिक्यूल्स में. इंसुलिन का ओवरडोज होने से डेथ हो जाती है. क्या होगा? इंसुलिन का ओवरडोज लो गया तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ट्रांसपोर्ट शुगर फ्रॉम ब्लड टू सेल्स एंड कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. सो इंसुलिन इज रिस्पांसिबल फॉर लोअरिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शुगर इन आवर ब्लड. तो ओवरडोज दे दोगे इंसुलिन का तो ब्लड में से शुगर पूरी सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, या तो जो भी शुगर है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो सडनली ब्लड शुगर लेवल काफी लो हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू डेथ. Spermatid transform into sperm through which process? Spermiogenesis. Then hypothalamus does not regulate. Obviously hypothalamus does not control medulla oblongata. बाकी जो ऑप्शंस पे दिया गया है वो सारे के सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. एटमॉस्फेयर में PCO2 0.3 mmHg है. तो जो ब्लड लंग में एंटर हो रहा है, अब देखो लंग में जो ब्लड एंटर हो रहा है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो PCO2 कितना होगा? 45 mmHg. और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्सुपियल, बैंडिकूट, वॉम्बैट, टास्मानियन वुल्फ, these all are example of adaptive radiation. वो इवोल्यूशन में डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम के बिल्कुल नीचे पूरा मेंशन किया है that these all marsupials they are representing adaptive radiation. The accessory reproductive gland in male cockroach, वो तो मतलब आपको मतलब याद ही रखना है, वो रट्टे मारने वाला क्वेश्चन है. Present in 6 to 7 abdominal segment. lymph का फंक्शन क्या है?
जो भी मॉलिक्यूल्स ब्लड वेसल्स में से डिस्चार्ज हो गए, ब्लड वेसल्स में से जो भी मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, वो मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करना। समझ में आया? So those molecules which get discharged outside of blood vessels, these molecules will be picked up, or these molecules will enter in lymphatic vessel, and this lymphatic vessel eventually open into some large vein, and that's how lymphatic vessel return these molecules of blood back into the blood. समझ में आया? ऐसा मान के चलो इजी है कि ये ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसमें से जो भी मॉलिक्यूल्स बाहर डिस्चार्ज हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। अब ये मॉलिक्यूल्स किस में एंटर होंगे? लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होंगे, और लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाके कहां पर ओपन होगी? लार्ज वेन में। क्लियर? सो द फंक्शन ऑफ lymph is to transport tissue fluid back to blood. The next is transcription of glucose from digestive system to liver is carried out by, it should be transportation of glucose, right? Transportation of glucose from digestive system to liver is carried out by hepatic portal vein. Clear? See, understand, all veins which are absorbing food from digestive system, all these veins open into hepatic portal vein, and through hepatic portal vein all absorbed food molecules first reach to liver, and liver then perform the process of detoxification. Liver will remove any kind of extra molecules, excess molecules. It will also neutralize any kind of harmful toxin. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में से फूड एब्जॉर्ब होके वो वेन पहले किस में जाती है? लिवर में. Means that vein is hepatic portal vein. Then lupinous seed may remain viable obviously for 10,000 years. वो भी दिया है रिप्रोडक्शन के यूनिट में. Next, hybrid black color guinea pig produce 2 million sperms. अब देखो 2 million sperms प्रोड्यूस हो रहे हैं. हाइब्रिड दिया है ब्लैक, तो ऐसे मान के चलो कि ब्लैक का हाइब्रिड तो ऐसे होगा, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, तो अगर 2 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें 50-50 पॉसिबिलिटी बनती है ना कि 50% में डोमिनेंट बी होगा और 50% में रिसेसिव बी होगा. क्लियर? तो इसमें आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज 1 मिलियन. तो ऐसे मान के चलो कि ये ब्लैक का है और ये व्हाइट का है, तो 50% चांस ब्लैक जीन के, 50% चांस व्हाइट जीन के. In what? Translocation of accumulated food during germination of seed. The answer is gibberellic acid. Remember, gibberellin is the most essential hormone for germination of seed. During germination, embryo is developing, embryo requires nutrient, so the mobilization of this nutrient is performed under the influence of which hormone? Gibberellin or gibberellic acid. So the answer is gibberellic acid. Next, what would become zero when cell is fully turgid? See, if cell is fully turgid, it means turgor pressure and osmotic pressure. The value of turgor pressure and osmotic pressure become equal. And if you know the formula of DPD is OP minus TP, osmotic pressure minus turgor pressure, तो value of OP and TP become same. और ये कब सेम होगी? जब सेल 100% turgid होगा. So in fully turgid cell, the value of OP and TP remain same, and hence the value of DPD become 0. The next question, which organism play a great role in recycling nutrient like nitrogen and phosphorus? देखो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जहां पर साइनोबैक्टीरिया दिया गया है. किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया में दिया गया है that the साइनोबैक्टीरिया is covered by a gelatinous sheath. तो gelatinous sheath सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में. In साइनोबैक्टीरिया they are not chief decomposers, they are producers, right? So obviously here they are asking about those microbes which play important role in nitrogen cycle and phosphorus cycle. So obviously they must be decomposers, and those decomposers, other bacteria, they are not covered by a gelatinous sheath. So the correct answer is organisms without gelatinous sheath. The next, the stage of hydrosia that appears just after the ready swim stage. The correct answer is marshmallow. राइट? वो तो इकोलॉजी में जो पूरा मतलब प्रोसेस है, सक्सेशन दिया हुआ है, उसमें पूरा डायग्राम ही है कि ये स्टेज के बाद ये स्टेज आएगा, ये स्टेज के बाद ये स्टेज आएगा. ऐसा एक और क्वेश्चन भी तो है इसी पेपर में, राइट? जहां पर आपको ये मतलब सक्सेशन की पूरी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करनी है. तो अगर ये आपका गलत है, वो भी गलत होगा, और अगर वो सही है तो 100% सही हो जाएगा. यहां पर आंसर क्या होगा? मार्शमेलो. द नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड. तो इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशंस है.
वो लिमिटेशंस कौन सी है कि उसमें डीकंपोजर्स को कहीं पर भी प्लेस नहीं दिया. सो द आंसर इज डीकंपोजर्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस. उसके आगे का क्वेश्चन, व्हाई प्लांट नीड फॉस्फोरस? ऑब्वियसली फॉर सेल मेम्ब्रेन मेनली. अंडरस्टैंड, right? Phosphorus is a main component of cell membrane as a phospholipid. So the first priority is obviously here. The most appropriate answer is what? Cell membrane. Then the next is asexual reproduction in Phaeophyceae. Phaeophyceae brown algae. उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है ये लाइन. They represent biflagellate zoospore and unequal laterally attached flagella. The next question, chromatophores are found in. देखो ये सेल चैप्टर में जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसमें जो मेसोसोम वाला टॉपिक है, वो मेसोसोम वाला टॉपिक जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर आखिरी लास्ट 2 या 3 लाइन में मेंशन किया हुआ है that the mesosomes of blue green algae, mesosomes of what? Blue green algae, they represent photosynthetic pigments, and these mesosomes which represent photosynthetic pigments, they are termed as chromatophores. So chromatophores found in cyanobacteria. और यहाँ पर cyanobacteria के एग्जांपल कौन से है? नोस्टो और बीजी है. Obviously the correct answer is fourth. The next is what is the role of veins in leaf blade? ये दिया गया प्लांट मॉर्फोलॉजी में, जहां पर लीफ स्टार्ट होता है उसके अगले पेज के पहले पैराग्राफ में वहां पर लीफ वेन्स के फंक्शन दिए गए हुए. The through leaf veins food transport to each and every cell of leaf, right? Plus all these veins also provide what? Mechanical support. They provide rigidity to the structure of leaf blade. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? It gives rigidity to leaf blade and transport of food. So the answer is both. वो लास्ट वाला ऑप्शन वैसे भी सही है कि वो वाटर और मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, बट अगेन जल्दी में अटेम्प्ट नहीं करना है, वो आप लोगों को देखना है. वहां पर देखो क्या लैंग्वेज यूज किया गया है, transport of water and minerals only. So the only word is making this option incorrect, right? So here the correct answer is third. The next question, the daughter chromosome are separated into daughter cells in bacteria. देखो वापस ये मेसोसोम वाला क्वेश्चन है. प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होते हैं, पता है ना? वेसिकल्स, लेमेला, ट्यूब्यूल्स. So those foldings of cell membrane in prokaryote, these foldings are termed as mesosomes. In mesosomes, if you remember, perform the function of respiration, right? Formation of cell wall, responsible for distribution of genetic material. तो मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है ना, तो मैंने डायरेक्ट मेसोसोम नहीं डाला है ऑप्शन में, वरना आप लोगों को वो आराम से मतलब वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता. तो आपको यहाँ पर सोचना है थोड़ा, right? The mesosomes are nothing but they are modifications of cell membrane only, na? So the correct answer is what? Cell membrane. The next, which enzyme is absent in mitochondria? Obviously hexokinase, because hexokinase initiate, it starts the process of glycolysis which occur in cytoplasm. So hexokinase is not present in mitochondria, it is present in cytoplasm. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 164. इसमें आप लोगों को सीक्वेंस पूछा गया है सक्सेशन का. तो उसमें आपको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा? फाइटोप्लैंक्टन. उसके बाद क्या आएगा? सबमर्ज प्लांट स्टेज. उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट. उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज. उसके बाद मार्स मेडो. इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आ गया. उसके बाद स्क्रब और लास्ट में क्या आएगा? फॉरेस्ट. तो ये डायग्राम में दिया गया है सक्सेशन के टॉपिक में, राइट? सो ये द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. UTRs are required untranslated region, those regions which do not undergo translation. तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी mRNA का पार्ट स्टार्ट कोडन से पहले और स्टॉप कोडन के बाद में ऑब्वियसली उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा. जैसे कि यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंस है CAG ACC AUG CAC GGG ACG UAG CAC. जैसे मान के चलो the process of translation it starts from which code? AUG. तो AUG कोडन तो यहाँ पर है ना, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा. तो ये वाले जो पार्ट है इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, राइट? और ये पता है ना UAG नॉनसेंस कोडन है, टर्मिनल कोडन, स्टॉप कोडन. तो यहाँ पर आके प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा ट्रांसलेशन का. तो इसके बाद भी जो कोडन है उसका भी ट्रांसलेशन नहीं होगा. So these regions which do not undergo translation, regions which are present before start codon and after stop codon,
they are termed as what? They are termed as UTR, untranslated region. कोर्टिकल लेयर ऑफ डाइकोस्टेम, ये भी दिया एनसीईआरटी में। जो डाइकोस्टेम के कोर्टिकल लेयर है, they are formed by loosely arranged parenchyma, and these parenchymatous cells are arranged in multiple layers. So the correct answer is fourth, multi-layer and loosely arranged parenchyma. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, फ्लोक्स का, फंजाई और बैक्टीरिया का। That's why secondary treatment is what? A biological treatment. The next question, a molecule that can act as a genetic material must fulfill all the following criteria except, तो आपको पता है मोलेक्युलर में क्राइटेरियाज दिए गए that what should be the criteria of genetic material. तो उसमें एक क्राइटेरिया ये दिया गया that they must produce their own replica, they must produce their own copies, they must be structurally stable, right? Then they must express themselves in Mendelian way. और एक ऑप्शन ये था कि उसमें म्यूटेशंस होना चाहिए। तो देखो ये भी मतलब अगर किसी ने जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट किया है तो ये भी गलत किया होगा, उसमें म्यूटेशंस होना चाहिए। एंड म्यूटेशंस इट कॉज सडन क्विक चेंज, तो म्यूटेशन से सडन चेंज होते हैं। इसमें देखो लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया पूरा। ऑप्शन सी पढ़ो, ऑप्शन 3, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर फास्टर चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर म्यूटेशन। तो इसमें उल्टा तरीके से पूछ रहे हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें फास्ट चेंज हो ताकि म्यूटेशन हो पाए। तो फास्ट चेंज होने की वजह से म्यूटेशन नहीं होता, म्यूटेशन होने की वजह से फास्ट चेंज होता है। समझ में आया? तो ये मतलब थोड़ा मतलब लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ किया गया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये भी तो समझना है, राइट? कि आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ओके यू नो द आंसर, बट अगेन राइट, think for a moment, give it few seconds, give it 5 7 10 seconds, right? Confirm your answer and then go with it, right? उसके बाद इन पॉलीसिफोनिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी दिया गया है रेड algae में। oogamous, in which fungi sexual spores are exogenous. Remember conidia, these are asexual spore if you remember, right? Here they are asking you about which spore? Sexual spore. So ascospore, basidiospore. अब ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये कोनिडिया, ये भी एक्सोजिनस है समझो, बट ये कैसी स्पोर है? एसेक्सुअल। आपको यहां पर क्या पूछा है? सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर में आती है एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ये दोनों कैसी स्पोर है? These both are sexual spores. Now ascospore, it is endogenous, but basidiospores are exogenous. Exogenous means these spores do not produce inside sac. They do not produce or they are not present inside a sac-like structure. वो covered नहीं है कोई भी कैविटी के अंदर, इसलिए उसको क्या बोला है? एक्सोजिनस। और बेसिडियोस्पोर किस में पाई जाती है? बेसिडियोमाइसिटिस में। यहां पर बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जांपल कौन से हैं? बुक्सिनिया एंड एगारिकस। सो द करेक्ट आंसर इज both 2 and 3, means correct answer is 4th. उसके बाद दिया गया है predict the sequence of nucleotide. देखो इसमें तुरंत आंसर आ जाएगा। उसमें आप लोगों को एमिनो एसिड की सीक्वेंस दी है, राइट? और वो सीक्वेंस इस तरह से दी है, पहली है मिथियोनिन, दूसरी है वेलाइन, फिर दिया है ट्रिप्टोफन, फिर दिया है फिनाइलएलेनिन। अब आप ऐसे मान के चलो डीएनए पे दिया गया, टेम्पलेट डीएनए पे कौन सा सीक्वेंस होगा? तो अगर ये मिथियोनिन है तो इसका कोड होगा AUG। इसका कोड क्या होगा? AUG, राइट? अब इसका कोड AUG है तो इसके टेम्पलेट पे क्या कोड होगा? ये तो ये आरएनए पे होगा ना, एमआरएनए पे, और एमआरएनए का कोड मस्ट बी AUG। तो अगर ये कोड AUG है तो एमआरएनए किस में से बना है? डीएनए में से। तो डीएनए पे कोड क्या होगा? डीएनए पे यहां पर होना चाहिए TAC। समझ में आया? लेकिन ये कौन सी चेन हो गई? टेम्पलेट। आप लोगों को पूछा है नॉन टेम्पलेट, तो ये भी थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर किसी ने जल्दी जल्दी में किया तो गलत कर दिया होगा। आपको पूछा है नॉन टेम्पलेट, तो ये होता है ना ये 3 to 5, समझ में आया? और ये हो गया नॉन टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो नॉन टेम्पलेट है उस पे क्या होगा? उस पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, T के सामने A
ए के सामने टी, सी के सामने जी। तो अगर पहला एमिनो एसिड मिथियोनिन है तो नॉन टेम्पलेट पे होगा एटीजी। समझ में आया? नॉन टेम्पलेट पे एटीजी होगा तभी तो टेम्पलेट पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री टीएससी होगा, और तभी तो टेम्पलेट के थ्रू एमआरएनए पे कौन सा आएगा? एयूजी। तो आप लोगों को नॉन टेम्पलेट का पूछा गया है तो उसमें 5 एंड पे पहला कौन सा होगा? एटीजी। तो देखो ऐसा एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? द नेक्स्ट इज व्हिच ऑर्गेनिज्म इज फ्री लिविंग? द आंसर इज एजोटोबैक्टर। वो दिया गया है चैप्टर मिनरल न्यूट्रिएंट्स में, जो नाइट्रोजन साइकिल है ना उसके लास्ट वाले पैराग्राफ में। एजोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच वुड रिक्वायर 1 glucose? C. For 1 glucose, number of ATP and NADPH required in C4 cycle, ATP would be 30 and NADPH would be 12. वो आपको C3 साइकिल में तो पता होगा कि in C3 cycle there is a requirement of 18 ATP and 12 NADPH। लेकिन ऐसे मानो जो C4 साइकिल है उसमें पता है ना 12 ATP एक्स्ट्रा होते हैं। ये 12 ATP एक्स्ट्रा किसके लिए होता है? For regeneration of 6-phosphoenol pyruvate। तो C4 प्लांट में भी C3 साइकिल तो होता ही है ना बंडल शीथ सेल में, तो आप लोगों को ये तो काउंट करना ही है 18 ATP and 12 NADPH। लेकिन उसमें आपको ये 12 ATP जो 6-phosphoenol pyruvate के रीजनरेशन में यूज हो रहे हैं उसको भी तो काउंट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ ATP क्या हो जाएंगे? 30 और NADPH 12। सो द करेक्ट आंसर इज 4th। The next, in dihybrid cross in F2 generation, if phenotypic ratio is 1:4:6:4:1 instead of 9:3:3:1, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो dihybrid ratio of polygenic inheritance is what? 1:4:6:4:1, right? And polygenic inheritance is quantitative inheritance. Remember skin color? उसमें ऐसा दिया गया है ना, as number of dominant genes increase, skin color turns डार्क, और जैसे जैसे रिसेसिव जीन्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होता जाएगा, ब्राइट होता जाएगा। क्लियर? देन स्मॉलेस्ट सीड्स आर फाउंड इन ऑर्किड, वो भी सीधा दिया गया एनसीईआरटी में। आरएनए पॉलीमरेज रिमेन एक्टिव इन व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल? इन G1 and G2 both। Remember, RNA is being synthesized in G1 as well as in G2. So for synthesis of RNA polymerase is essential. Right? So RNA polymerase must remain active in both stage, in G1 as well as G2. उसके बाद which of the given can remove over 99% of particulate matter? Easy, electrostatic precipitator. All organisms are aware of their surrounding because ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। तो कई बच्चों ने क्या किया होता है, पहला चैप्टर काफी इजी करके ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने पहले चैप्टर में से मतलब तुरंत एनसीईआरटी की एक लाइन खा ली है जो उसमें पूछा गया है ना, which are defining properties of living organism। उसमें वो पेज पे दिया गया है मेटाबॉलिज्म, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन, फिर दिया गया कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस वाला पैराग्राफ है ना उसमें आपको ये लाइन मिलेगी that all organisms handle chemical entering their bodies। So the correct answer is 3। And success of mammal ये वापस इकोलॉजी में दिया है, right? We mammals are so successful because of our ability to maintain constant internal temperature। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ मैटर आउटसाइड ऑफ सेल। अभी सिक्रीशन की बात आया, राइट? वो सेल के अंदर हो रहा हो या सेल के बाहर जा रहा हो, सिक्रीशन मतलब गोल्गी बॉडी, इतना याद रखना है। क्लियर? द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये भी देखो, ये वापस इस तरह के ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं कि जो आपसे गलत आंसर निकल पाए, राइट? अगर आप कंसेप्चुअली सोचोगे ना तो उसमें ऐसा लगेगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिनेटर भी तो हो सकता है, कि अगर पॉलिनेटर इन्वॉल्व है तो क्रॉस पॉलिनेशन, अगर नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। इसलिए तो मैंने बोला कि एनसीईआरटी को ठीक से मतलब पढ़ना है। तो अभी भी आपके पास थोड़े दिन बचे, 10-12 दिन, एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, उसकी हर एक लाइंस देख लो, राइट? तो पॉलिनेशन का टॉपिक जैसे ही स्टार्ट होता है तुरंत उस पे दिया गया है that the type of pollination is based on the source of pollen grain। अगर वो सेम फ्लावर में से आ रही है, विदिन फ्लावर उसी फ्लावर में जा रही है तो क्या होगी? ऑटोगेमी। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रही है उसी प्लांट पे तो क्या हो गया? गेटेनोगेमी। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रही है और प्लांट भी अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगेमी, राइट? सो ये करेक्ट आंसर इज सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। देन व्हाट इज द पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन? एक और ऐसा क्वेश्चन जो जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि जो आपसे गलत आंसर निकलवा है।
देखो आपको कभी भी ऐसा लगे कि ओके सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट और आप बाकी के दो ऑप्शंस छोड़ रहे हो, वैसा मत करो। वो आपको ललचाने के लिए, देखो मैंने भी मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से सेट किया है, ये मुझे पता था कि 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? उसका एक रीजन ये कि इवोल्यूशन के चैप्टर में ये बोल्ड लेटर में दिया गया है, the two key concept of Darwin is branching descent and natural selection, वो बोल्ड में दिया गया है। तो सभी बच्चों को मतलब वो प्रिंटेड होता है दिमाग में, होता है विजुअल मेमोरी वो होती है, तो तुरंत देखते दो ऑप्शन, अच्छा ब्रांचिंग डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन, और थर्ड में दिया गया 1 and 2 बोथ, तो 1 and 2 बोथ करके आ जाते हैं। बट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे आर आस्किंग अबाउट द पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और ये लाइन दी गई है तुम्हें चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कंपटीशन वाले टॉपिक में। कंपटीशन वाले टॉपिक में दूसरी लाइन में ये लिखा गया है, द डार्विन वाज कन्विंस्ड right that the potent force of organic evolution is interspecific competition, so the correct answer is what? Competition. Understood? The next, on what basis sclerenchyma can be divided into either fiber or sclera? तो ये भी जो sclerenchyma का पोर्शन है ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स में, वहां पर मतलब फाइबर और स्क्लेरिड जहां पर एक्सटेंड किया है उसी पार्ट में दिया गया है sclerenchyma में, that based on variation in form, structure, origin and development, we classify sclerenchyma into two types, sclerid and fibers. So the correct answer is third. Now artificial insemination help us to overcome several problems of normal mating, except देखो with the help of artificial insemination we can avoid many problems which otherwise we could face right in the process of normal mating। तो कौन कौन से प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रहे हैं? तो सीमेन कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और लेटर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया राइट, तो वो आंसर नहीं है। सेकंड, सीमेन कैन बी यूज्ड ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस हो गया कि अगर फीमेल है, फीमेल कोई मतलब दूसरे एरिया, दूसरे रीजन, दूसरे हैबिटेट में है, तो वहां पर सीमेन को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रोजन कंडीशन में, तो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, डिजायरेबल मेटिंग्स कैन बी कैरीड, ये भी सही है। सी देखो आपको किसी और एनिमल में से अच्छे जीन्स मिले, समझ में आया, तो आपको किसी और एनिमल के स्पर्म राइट अगर इंट्रोड्यूस कराने फीमेल में, तो समझो वो नेचुरल रिप्रोडक्शन तो उसमें पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है ना कि मतलब कोई ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का कोई बुल है और वो बुल के स्पर्म्स क्वालिटी वाले स्पर्म्स है, वो आपको चाहिए, तो या तो आप पूरा का पूरा बुल ट्रांसपोर्ट करो इंडिया में, फीमेल आपकी इंडिया में और जो बुल आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो वो तो फिजिबल नहीं है ना कि उसको ट्रांसपोर्ट करो राइट। ये भी हो सकता है कि अगर वो नेचर में ही मिले ऑस्ट्रेलियाई बुल एंड इंडियन काउ, तो हो सकता है कि मतलब वो नेचुरल रिप्रोडक्शन ना करे। क्लियर? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम ये सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। हमें कहा उसमें नेचुरल रिप्रोडक्शन की वेट करनी है, हमें तो बुल में से सीमेन कलेक्ट करना है और वो सीमेन आर्टिफिशियली जो काव है उसकी मतलब वजाइना में इंट्रोड्यूस कराना है। समझ में आया? तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल दोस थ्री दे आर रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ना उसका कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। देन ये तो पता ही होगा कि इंडिया इज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, बट स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है पूरे वर्ल्ड की? 8.1। वो इजी था। फिर वापस एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए आपको क्वेश्चन नंबर 186 में, उसमें ऐसा है अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेकोपेरोन हैज टू बी प्रेजेंट, ये लाइन एनसीईआरटी की। लेकोपेरोन एक लो लेवल पे ऑलवेज एक्टिवेट रहता है ताकि उसमें से परमेज एंजाइम कंटीन्यूअसली बनता रहे, और अगर परमेज एंजाइम कंटीन्यूअसली सिंथेसिस होगा तभी तो जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल है वो ई कोलाई के अंदर एंटर हो पाएंगे, बिकॉज़ परमेज इट मेक्स सेल मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर लैक्टोज, और लैक्टोज अंदर जाएगा तो पता है ना, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर एंड इट विल फर्दर प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ एंटायर ओपेरॉन राइट। तो एक लो लेवल पे लेकोपेरोन ऑलवेज एक्टिव होना ही चाहिए, तभी उसमें से कंटीन्यूअसली परमेज बनता रहेगा और तभी लैक्टोज ई कोलाई के सेल में एंटर हो पाएगा, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरोन इज ऑलवेज नेगेटिव, अब ये स्टेटमेंट गलत है। लेकोपेरोन जहां पर खत्म होता है ना उसकी लास्ट लाइन वहां पर दिया गया है, तो रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरोन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव राइट।
बट राइट नाउ द पॉजिटिव रेगुलेशन इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ स्टडी, वो अभी हमें नहीं देखना है, हो दोनों सकता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि हमेशा नेगेटिव होगा, तो वो स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग। Then in prokaryote, control of the rate of mRNA transport is the predominant site for control of gene expression, ये भी तो गलत है। प्रोकैरियोट में mRNA को ट्रांसपोर्ट कहीं पर होने की जरूरत ही नहीं है, उसमें कहा कंपार्टमेंट है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें कंपार्टमेंट सेपरेट होंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल, ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन द आरएनए has to transport into cytoplasm, तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो यहां पर वो ट्रांसपोर्टेशन को रोक के आप जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन they are talking about prokaryote, so prokaryote में तो न्यूक्लियस ही नहीं, उसमें कंपार्टमेंट्स ही नहीं, आरएनए को कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं है, तो वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, राइट। सो ऑब्वियसली दैट स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट ओपन इन 5 to 3 पोलैरिटी। तो अगर आपको रेप्लिकेशन फॉर्म का डायग्राम पता है तो ये टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होगी, 3 to 5। ये टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होगी, 5 to 3। जहां से टेम्पलेट ओपन हो रहा है वहीं से पोलैरिटी काउंट करनी है, तो इसकी पोलैरिटी है 3 to 5, इसकी पोलैरिटी है 5 to 3। तो आपको पता है ना कि यहां पर ये लीडिंग चेन बनेगा कंटीन्यूअस, और यहां पर लैगिंग चेन का फॉर्मेशन होगा डिसकंटीन्यूअस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, समझ में आया। तो जो टेम्पलेट 5 to 3 है उसके ऊपर जो चेन बन रही है दैट चेन इज डिसकंटीन्यूअस और लैगिंग चेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इनकरेक्ट कौन से है, इसमें से इनकरेक्ट है बी और सी, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। Then valvular estivation is found in how many plants? सारे के सारे प्लांट्स में valvular estivation होगा। अभी देखो जिन लोगों के पास एक भी एडिशन पुरानी है एनसीईआरटी की, उसमें फेबेसी फैमिली में valvular estivation मेंशन नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि आपका आंसर इसमें गलत हो। लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें तीनों फैमिली, फेबेसिया फैमिली, सोलेनेसिया फैमिली एंड लिलियसिया फैमिली, in all these three families they have mentioned the presence of valvular estivation, right? So here the correct answer is all these 6 plants, it means answer is 3. Then what induce root formation? अब root formation कौन induce करता है, ऑक्सिन, so here the answer is indole butyric acid, IBA, which is the type of auxin. Then next, what is essential for each chemical reaction? Obviously respiration में सारे के सारे chemical reactions के लिए क्या है, एक different enzyme, so you need a specific enzyme for to perform a specific reaction in the process of cellular respiration. The next question is 190. How many nuclei are involved in an event of triple fusion during double fertilization? अब कई बच्चों ने जल्दी में यहाँ पर आंसर टिक कर दिया 5। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन वो पूरे डबल फर्टिलाइजेशन का नहीं पूछ रहा है, they are asking you only about triple fusion event। तो ट्रिपल फ्यूजन में नाम ही तो ट्रिपल फ्यूजन है, क्यों ट्रिपल फ्यूजन है, क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है। पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई होंगे पोलर सेल में, और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई होगा, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए, 3। The correct answer is 3. Next question, Hollandric gene which is known for hypertrichosis. Hypertrichosis means growth of hair on ear pinna. अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को ऑलरेडी मेंशन कर दिया है Hollandric gene. Hollandric gene means those genes which are present on chromosome Y. Which are present on which chromosome? Genes which are present on Y chromosome. तो अगर ये हाइपरट्राइकोसिस का जीन होलेंड्रिक है और वो Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो डॉटर में तो वैसे भी नहीं आएगा ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, राइट, कि डॉटर में ये कैरेक्टर आने के परसेंटेज कितने हैं, तो ऑब्वियसली डॉटर में तो कैरेक्टर आने के कुछ परसेंटेज है ही नहीं। अंडरस्टूड? सो हियर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 0%। देन मैच द फॉलोइंग। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जूम कल्टीवेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो आपको पता है, राइट। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, 4। इसमें डिस्कस नहीं करोगे, काफी इजी है। हाउ मेनी किंगडम इंक्लूड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म? देखो मोनेरा, जो विटेकर के 5 किंगडम्स है उसमें मोनेरा में भी सेप्रोफाइट है, ऑब्वियसली दे आर सेप्रोट्रॉफ। फिर कौन सा किंगडम आता है आफ्टर मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसमें भी तो सेप्रोट्रॉफ है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड इज अ सेप्रोट्रॉफ, राइट। उसके बाद कौन सा आता है, फंजाई, सो ऑब्वियसली मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ। तो कितने किंगडम में सेप्रोट्रॉफ दिया गया है, 3। कौन से मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई।
तो नेक्स्ट इज अ प्लांट पॉपुलेशन दैट रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो हो गया कौन सा, इनब्रीडिंग। क्लियर, सेम सेट ऑफ जीन्स विल ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट्स अ टाइप ऑफ इनब्रीडिंग। ट्रांसपिरेशन इज नॉट यूजफुल, ऑब्वियसली एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल, राइट। ट्रांसपिरेशन का काम वाटर को रिलीज करना है, मिनरल्स को नहीं। क्लियर, सो ट्रांसपिरेशन इज नॉट यूजफुल इन एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने फास्फोरस साइकिल का डायग्राम दिया है, वो डायग्राम वही है जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, तो उसका तो आंसर आपको पता है, आपने डायग्राम देख लिया होगा फास्फोरस साइकिल का, उसमें आंसर है सेकंड। फिर प्लांट शोइंग हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल कौन से प्लांट में है, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में, राइट। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज, राइट, दोनों में किसी में ये फेज लिमिटिंग फेज नहीं है। इन ब्रायोफाइट remember the main phase is gametophytic phase but sporophytic phase is not limiting. In pteridophyte the main phase is sporophytic phase but gametophytic phase is not limiting, इसलिए ये साइकिल को क्या बोला है, हैप्लोडिप्लोइडिक। तो इसमें दोनों फेज में से एक भी फेज लिमिटिंग नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रायोफाइट में कौन सा फेज डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पोरोफाइट लिमिटिंग फेज है। और टेरिडोफाइट में कौन सा फेज मेन है, स्पोरोफाइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गैमेटोफाइट लिमिटिंग फेज है। समझ में आया, तो दोनों फेज मल्टी सेल्यूलर है। सो हियर द आंसर इज व्हाट, बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। देन व्हाट कंपनसेट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ pH2 इन लाइट रिएक्शन। H2 है तो आपको पता होगा ना, या आपको पता होगा कि pH2 जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन वो किस में चले जाते हैं, pS1 में, वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन Z स्कीम। तो pH2 में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं pS1 में, तो pH2 वो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, तो पता है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वो H2O स्प्लिट होगा, H2O स्प्लिट होगा तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन भी तो रिलीज होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, pH2 में। तो pH2 के जो दो इलेक्ट्रॉन pS1 में चले गए, वहां उसका कंपनसेशन इसको कैसे मिला, इसने किसके दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, H2O के, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज H2O। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, वो डायग्राम दिया गया है इंडिया के बायोम्स का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, उस पे कौन सा इसमें से आंसर आएगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड लास्ट अगेन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मतलब ट्रिकी आप कह सकते हो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, पहला ऑप्शन पढ़ के वही टिक कर देते हैं, लॉजिकली भी उनको लगता है ये सही तो है, पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगा, फिर उसमें ऑक्सीडाइज होगा तो कैटाबोलिज्म होगा, पहले ह्यूमस बनेगा तो ह्यूमिफिकेशन होगा, बाद में मिनरल्स बनेंगे तो मिनरलाइजेशन होगा, तो तुरंत फर्स्ट टिक करके आ जाते हैं। लेकिन जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, टॉपिक, वो जो पेज पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है उसी पेज की लास्ट पैराग्राफ की पहली दो लाइंस पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा है that all steps of decomposition operates simultaneously on the detritus। तो ये कोई सीक्वेंशियल इवेंट नहीं है, जो भी आप डिकम्पोजिशन में पढ़ रहे हो ना, वो सारे की सारी इवेंट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली डेट्रिटस पे हो रही। तो ये था आप लोगों की मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया है, और जो मतलब ऐसी छोटी छोटी लाइनें थी जो एनसीईआरटी में, जो हो सकता है कि अब तक आपसे मतलब छुपी थी, हिडन, राइट, आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। सो नाउ यू हैव 12 to 13 days with you, right? So try to go through entire NCERT for one last time। मतलब एक एक आर दे के सारे के सारे चैप्टर जो 36 चैप्टर्स है उसको एक बार रिवाइज कर लो, सॉरी जो 38 चैप्टर्स है उसको एक बार रिवाइज कर लो, राइट, ताकि कोई भी लाइन मतलब छूट ना जाए। अदरवाइज आप लोगों का परफॉर्मेंस मैंने देखा है, मतलब वो ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा है आप लोगों का, राइट। अभी बस कॉन्फिडेंस बनाए रखे सभी लोग, और एक लास्ट टाइम जितने भी एफर्ट आप डाल सकते हो डाल दीजिए, राइट। एंड अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट। सी यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।